Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. My dear students, in last session we have discussed about some of the important features regarding biofortification. And we have seen that how these breeding crops with higher level of vitamins as well as minerals and even higher protein content, higher healthier fat content, they can be implemented. Even we have discussed few of the examples and we have seen the objectives just to improve all the protein content, oil content, vitamin content as well as micronutrients and mineral contents. Some of the examples also we had discussed in earlier session. They are the enriched vitamin A enriched carrots, spinach, pumpkins, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, even iron and calcium enriched spinach and bathua. ये दोनों ही एक प्रकार की भाजी है. स्पिनच तो आपको मालूम है पालक की भाजी, इसी तरह से बथुए की भी भाजी होती है, वो बहुत ही हेल्दी होती है. एंड लास्टली प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक ब्रॉड लैब बीन्स, फ्रेंच बीन्स, गार्डन पीज एक्सेट्रा. तो इस तरह से बायो फोर्टिफिकेशन हम इम्प्लीमेंट करके ये नई वेराइटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं. नाउ today we are going to discuss about single cell protein, a new concept. Single cell protein, actually the conventional agricultural production of cereals, pulses, vegetables, fruits, they may not be able to meet the demand of food at the rate of which the human and animal population is increasing day by day. So we have to find out the alternative method. And the shift from grain to meat diet also creates more demand for cereals, as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है. And more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition. आपको मालूम होना चाहिए, हंगर जिसको हम भूखमरी बोलते हैं एंड मैल न्यूट्रिशन जिसको हम कुपोषण बोलते हैं. या तो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है और या फिर भूख के मारे वो मर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं जिनमें ये हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है. सो जस्ट टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम सम ऑल्टरनेटिव वी हैव टू फाइंड आउट. So one of the alternative sources of protein for animal and human nutrition is single cell protein, जिसको हम शॉर्ट में एब्रीविएट कर सकते हैं SCP. Microbes are being grown on an industrial scale as a source of good protein. Okay, microbes like spirulina, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे नाम लिखा है स्पिरुलिना. And it can be grown easily on materials like wastewater from potato processing plants which contain starch. तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं माइक्रोब्स. एंड ऐसा वेस्ट तो होता ही है जनरली, सीवेज और ये इसके अंदर ये कंटेनिंग स्टार्च या ऐसी इंडस्ट्रीज. देन इवन स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल्स मैन्योर एंड इवन सीवेज. तो इसके ऊपर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं जो इस तरह का हेल्प हमें कर सकते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन as well as minerals, fats, carbohydrates and vitamins also. And incidentally such utilization also reduce environmental pollution, क्योंकि अपने आप ही क्लीनिंग होता रहता है. जैसे हमने डिस्कस किया अभी ही, एनिमल मेन्योर पे वो ग्रो कर सकते हैं, सीवेज पे ग्रो कर सकते हैं, मीन्स जो गंदा पानी होता है या इस तरह की जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इजीली वो ग्रो करके प्रोटीन कंटेंट वो डेवलप कर सकते हैं. इवन it has been calculated that 250 kg cow produces 200 gram of protein per day, and in the same period this 250 gram of microorganism like Methylophilus methylotrophus, ये एक ऐसा नाम है, this is the scientific name of this microbe. I am repeating, Methylophilus methylotrophus.
and because of its high rate of biomass production and growth, it can be expected to produce 25 tons of protein. हम बोलते हैं ना छोटेपन में भी बहुत बड़ी ताकत है उनके पास. माइक्रोब्स दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर माइक्रोस्कोपिक. हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं, हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. बट in more number, when they produces, they can create a large quantity of protein. 25 tons of protein ऐसा calculation किया है. The fact that mushrooms are eaten by many peoples and even large scale mushroom cultures is a growing industry and make it believe that microbes too would become acceptable as food in future. We are talking about in future. So this single cell protein concept, it is also one of the emerging concept in which the use of these microorganisms, यहाँ पे हमने 2 microorganism discuss किए आज, spirulina एंड मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस. तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करके और सिंगल सेल प्रोटीन का कंसेप्ट हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाउ लेट अस come to the end part of the chapter and the last topic of this chapter. Even this topic is very important. जैसे हमने methods of plant breeding वाला concept हमने डिटेल में पढ़ा था और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था. कुछ 2-3 सेशंस के पहले हमने ये समझा था. इसी तरह का ये टॉपिक है अबाउट टिश्यू कल्चर. आपने ये वर्ड सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है एंड मैनी टाइम्स वी आर यूजिंग. बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एज रिगार्डिंग टू द प्लांट्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल्ड टू कीप पेस विद डिमांड टू प्रोवाइड द sufficient and fast efficient system for crop improvement. So another technology which is known as tissue culture developed. ये एक reason था, one of the reason. So what do you mean by tissue culture? It was learned by actually scientists during 1950s that whole plant could be regenerated from explants. तो यहाँ पे एक बहुत ही important term है ये explants. इसका मतलब होता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन दी टेस्ट ट्यूब अंडर प्रॉपर कंडीशन. कैसी कंडीशन? स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक्सप्लांट को डेवलप करने के लिए. कौन कौन सी? अंडर स्टेराइल कंडीशन, जहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा ना लगे, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन हो, और साथ साथ में पूरी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो. So what will happen? This explant, it has a capacity to generate a whole new plant from any of the cell or explant. जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी. और ये टर्म आपने पहले भी पढ़ ली है, 11th स्टैंडर्ड में हमने ये टर्म पढ़ी हुई है. बट स्टिल इफ़ यू डोंट रिमेंबर, अगेन वी आर रिवाइजिंग इट. So totipotency is a capacity to generate a whole plant from any cell mass. तो इस सेल मास को हमने या तो एक्सप्लांट बोलेंगे या कोई भी सिंगल सेल भी हो सकता है या किसी सेल का ग्रुप भी हो सकता है. So in this way, totipotency is a very peculiar characteristic feature and it is used here. And we have learned earlier also about it. So it is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts like vitamins, amino acids and growth regulators like auxins, cytokinins etc. क्योंकि जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं उनके प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में होने ज़रूरी हैं. तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो न्यूट्रिएंट मीडियम में होने चाहिए? एनी ऑफ द कार्बन सोर्स लाइक सुक्रोज, एनी ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इवन विटामिन्स, एमिनो एसिड्स एंड सर्टन ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. ये भी आप फर्दर चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी आपको खाली ये नाम याद रखना है. दे आर ग्रोथ रेगुलेटर्स. वो हमेशा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं प्लांट्स में. इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. सो इन दिस वे दे शुड बी प्रोवाइडेड इन न्यूट्रिएंट मीडियम.
and by the application of all these methods, it is possible to achieve propagation of large number of plants in a very short time. Okay, so it is very helpful technique, and this method of producing thousands of plants through tissue culture is called micro propagation. तो ये जितनी भी टर्म्स मैंने हाईलाइट की हैं वो सारी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. ईच एंड एवरी टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट. सबसे पहले हमने एक्सप्लांट को डिस्क्राइब किया, फिर उसकी एबिलिटी टोटिपोटेंसी उसको डिस्क्राइब किया, और अब हम पहुँचे हैं माइक्रो प्रोपोगेशन पे. तो जितने भी हमको टिश्यू कल्चर की मदद से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हमको मिले हैं, सो वी आर प्रोड्यूसिंग इट, वी आर एबल टू प्रोड्यूस इट, दैट इज़ थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन. एंड ईच ऑफ दीज प्लांट्स जो हमने अभी डेवलप किए हैं, each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they have grown. That is, they are soma clones. क्योंकि somatic cells इसके मैच हैं, सोमा वर्ड वहाँ से आया है, तो सोमैटिक सेल्स का मैचिंग है ये, या बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है, बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं. सो दे आर नोन एज सोमा क्लोन्स. ओके, ऐसे समझ के आप याद करोगे तो ये टर्म्स आपको याद रहेंगी. Many important food plants like tomato, banana, apple, they have been produced on commercial scale by using this method. So it's a helpful thing. Now another important application of method is the recovery of healthy plants from diseased plants. ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है. Although the plant is infected with a virus, the मेरिस्टेम भी आपने पढ़ लिए हैं. दे आर दी कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, और टिश्यूज जो एपिकल एंड एक्सिलरी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. एपिकल मेरिस्टम्स एंड द लेटरल मेरिस्टम्स आपने पढ़ लिए हैं ये. तो उनको दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ वायरस. कोई भी पार्ट अफेक्टेड होगा बट ये मेरिस्टम्स कभी भी अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं. हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम्स एंड ग्रो इट इन विट्रो to obtain virus free plants. In laboratory we can grow them, and even scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato, etc. Scientists have even isolated single cells from plants, and after digesting their cell wall को पूरा हटा दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, they have been able to isolate naked protoplast. क्योंकि प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो उसको फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. खाली सेल वॉल को रिमूव किया जाता है. ओके, सो इन दिस वे दिस इज ऑल्सो यूज्ड. सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट दैट इज डेवलप्ड, दैट इज आइसोलेटेड, एंड फ्रॉम 2 different वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दे आर कलेक्टेड, ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर. बात वही होगी जो प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन एम है. हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम देखना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन में, उनके पेरेंट्स पहले सेलेक्ट करते हैं. उसमें हम प्रोटोप्लास्ट अलग कर रहे हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट करके हम प्रोटोप्लास्ट पार्ट देख रहे हैं, ले रहे हैं, एंड दे कैन बी फ्यूज्ड टुगेदर टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. 2 प्लांट्स का हम फ्यूजन करवा रहे हैं, एंड विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. सो दीज हाइब्रिड्स आर एक्चुअली नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड्स, and the process is known as somatic hybridization. तो ये भी एक नया टर्म है. तो इन टोटल हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक में 5 से 6 टर्म्स हमने देखे. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले एक्सप्लांट्स, देन टोटिपोटेंसी, देन माइक्रो प्रोपोगेशन, देन सोमाक्लोन्स, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मेरिस्टम्स, एंड लास्टली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो 6 टर्म्स यू गॉट. सो 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टिश्यू कल्चर में. एंड इसी तरह से जो लास्ट टेक्निक हमने देखी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है. एंड हियर द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो, एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इसका हम नाम भी देख सकते हैं, पोमैटो, by producing the combination of protoplast of tomato and protoplast of potato. तो सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप किया गया है जिसका नाम है पोमैटो, POMATO.
तो इस तरह से ये टेक्निक्स बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं और हम जो चाहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू क्रॉप में जनरेशन में हम डेवलप कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी आर ending our chapter here, and I want to tell you about the exercise which is given at the back side of the chapter. Just do all the questions, they are very important. And जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उन सबको कंबाइंडली इसमें इंक्लूड कर लिया है इन सारे क्वेश्चंस में. सो डू ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड इवन जितने भी टर्म्स मैंने ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से हाईलाइट किए हैं उनके बारे में जो भी डिटेल सिलेबस में दिया है वो सब आपको याद रखनी है. एक अलग से सेपरेट पॉइंट्स बनाने हैं. ठीक है. जैसे कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे थे अभी, SCP, बायो फोर्टिफिकेशन, टोटिपोटेंसी, सोमाक्लॉन्स या एपिकल्चर, ये इस तरह की जो टर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. ओके. सो प्लीज़ do all the work in time, do revise, and we are ending our chapter as well as session here. Take care. Bye bye student. Meet you with the next chapter.